पेनक्रियास, इट इज अ लीफ लाइक, एक पत्ते जैसा है. ओके, इट इज अ लीफ लाइक, एक पत्ते जैसा है. हेटेरोक्राइन, लीफ का शेप है उसको. और हेटेरोक्राइन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड हेटेरोक्राइन? हेटेरो मींस डिफरेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हेटेरोक्राइन मींस इट इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. हेटेरोक्राइन मींस व्हाट? बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. दोनों है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है. So it is both endocrine and exocrine. Okay, rubbing it out. So it is a leaf-shaped heterocrine gland present in the gap formed by the bend of the duodenum. You see, this is the duodenum. ये bending होता है, ये bend होता है. जब ये bend होता है, तो यहाँ पे you will find a gap. ठीक है, येलो कलर का मैंने बनाया ये गैप. इस गैप में पेनक्रियास रहता है. ओके, इट इज प्रेजेंट इन द गैप. So it is present in the gap, okay, between the duodenum or under the stomach. The exocrine part is the exocrine part of pancreas is made up of acini cells. कौन से सेल का बना हुआ है? acini. ठीक है, acinar cell secretes alkaline pancreatic juice that contains various digestive enzymes. तो क्या करता है exocrine part? acinar cells का बना हुआ है और एंजाइम बनाता है जिससे डाइजेशन होता है. तो they are called as digestive enzyme. Pancreatic juice is collected. कोई एंजाइम का जो ग्रुप ऑफ एंजाइम को हम पेनक्रेटिक जूस बोलते हैं. कलेक्टेड कैरिड थ्रू द duodenum by pancreatic duct. डक्ट मतलब होता है ट्यूब. द वर्ड डक्ट मींस व्हाट? ट्यूब. ये जूस कौन बनाया? पेनक्रियास ने बनाया. पेनक्रियास से वो जाएगा duodenum में, दैट इज इंटेस्टाइन में, डाइजेशन के लिए. तो जब जाएगा ना, तो वो कैसे जाएगा? ट्यूब से जाएगा, डक्ट से. The common bile duct of the common bile duct joins with pancreatic duct and form hepatopancreatic duct. यहाँ देख लो hepatic duct, ये देखो pancreatic duct. यहाँ पे दोनों डक्ट ज्वाइन होता है, उसको बोलते हैं hepatopancreatic duct. क्या बोलते हैं? hepatopancreatic duct. जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट जुड़ते हैं, उसको एम्प्यूला ऑफ वेटर भी बोलते हैं. VATER, वेटर. It opens in duodenum. The opening of hepatopancreatic duct is guarded by sphincter of Oddi. अभी ये जो डक्ट है ट्यूब, इसको अंदर है ना एक वाल्व रहेगा या स्फिंक्टर रहेगा, इसका नाम है डक्ट ऑफ ऑडी या स्फिंक्टर ऑफ ऑडी. ओके, sorry, endocrine part. Now we are going to study the endocrine part of the pancreas is made up of group of cells called as the islets of Langerhans cells. क्या बोलते हैं इसको? islets of Langerhans cells. Okay, islets of Langerhans cells. It is present between the acini cells. The islet of Langerhans cells are made up of alpha cells. ये बताया था मैंने. ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है बीटा सेल्स, इंसुलिन बनाता है, and somatostatin secreted by delta cells. Glucagon and insulin together control the blood sugar level. Somatostatin inhibits the glucagon and insulin, दोनों को inhibit करता है, वो दोनों को कंट्रोल करता है. ठीक है. Now topic is physiology of digestion. ठीक है. You will come across many times this word physiology. Now what is the meaning of this word physiology?
The word physiology is formed from two different words, physio and logos. The word physio means function, logos means study of normal functions of our body. तो यहाँ पे normal functions of digestion की बात कर रहे हैं हम लोग. We are already aware that food we consume need to be processed in order to utilize it completely. कोई भी फूड को completely इस्तेमाल करने के लिए प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, एक अलग फॉर्म में बनना जरूरी है. The physiology of digestion includes various processes involved in simplification of food. इसमें अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग स्टेप इन्वॉल्व होता है जिसमें फूड को सिंप्लीफाई करना है. The food which we eat is a complex molecule. वो कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसको सिंपल बनाना है. That is digestion. So digestion process is carried out by mechanical as well as biochemical method. Now ये mechanical क्या है? दांत में चबाते हैं खाना, we chew the food, ना खाते कि नहीं? We chew. अरे बहुत लोग तो खाते ही नहीं है, सीधा निकल लेते हैं. They directly swallow it. So that is wrong. So that is 100% wrong. So chewing of food is essential. If you swallow, it is not good for your health. The mechanical digestion includes the movement of alimentary canal that helps the chemical digestion. हमारा जो intestine माउथ जो है, सॉरी माउथ से स्टार्ट होता है, एनस तक जाता है एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? इंटेस्टाइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है पेरिस्टालसिस. हम लोग सुनते हैं ना, गुड़ 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 आवाज आता है इंटेस्टाइन में, डर ऐसा आवाज आता है. इट इज जुलाब के टाइम पे आता है, बाकी टाइम में भी आते रहते हैं, बट जुलाब में वो ज्यादा होता है. इसके लिए फोर्सफुली थ्रू आउट मोशंस बाहर आता है. मैकेनिकल और चीविंग, मुंह से चबाते हैं खाना, फूड बाय टीथ. चर्निंग इन द स्टमक, स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होता है. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट which bring about mechanical digestion of the body. Okay, थोड़ा सा रीड करो. Now chemical digestion is a series of catabolic मतलब breakdown लिखा भी है, anabolic मतलब growth, that is formation, reaction that hydrolyze the food. Let us now study the process of digestion from the point where it enters the food by its mouth. सबसे पहला स्टेप डाइजेशन का किधर होता है? माउथ में होता है. दैट इज मैकेनिकल प्रोसेस. इसमें सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द माउथ. माउथ में अपना दांत जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस का काम करता है, एंड जो सलाइवा है वो केमिकल प्रोसेस डाइजेशन में हेल्प. बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द माउथ. मैस्टिकेशन और चीविंग, चावने, जेवण अपन चावतो, chewing of food, okay, takes place in the help of teeth and tongue. What is the function of the tongue? Tongue is a fleshy, roughly triangular muscular organ that is responsible for mixing of food. Okay, food को mix करने में help करता है. So mastication, okay. So teeth crush and grind the food, tongue manipulate the food. Crushing of food becomes easier when it gets moistened by saliva. है ना? Mucus in the saliva lubricate the food as well as it help in binding the food particle in the mass called as bolus. फूड को बाइंड करता है, जोड़ता है, एक मास बनाता है जिसको बोलते हैं बोलस. The bolus is swallowed by deglutition. बोलस को निगलते हैं हम लोग, and the process is called as deglutition. The tongue presses against the palate, वो palate के खिलाफ प्रेस करता है, and pushes the bolus into the pharynx. वो किधर जाता है? pharynx में जाता है. bolus further passes into the esophagus. वो किधर जाता है? esophagus में. तो food हमने जो swallow किया वो किधर गया अभी? esophagus. Now the saliva contains 98% of water and 2% of constituents of electrolytes like sodium, potassium, chloride, bicarbonate, etc.
The digestive salivary amylase, the only chemical digestion takes place in the mouth by action of salivary amylase. Salivary amylase की वजह से chemical digestion होता है. About 30% of the starch get converted into maltose. 30% of starch जो है जो हम लोग खाते हैं वो maltose में माउथ में ही कन्वर्ट हो जाता है. सोचो ना, तो स्टार्च का डाइजेशन 30% तो माउथ में ही हो जाता है. So saliva also contains some enzyme lysozyme. Lysozyme कौन बनाता है? हमारा लाइसोसोम. चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे तो लाइसोसोम, the suicidal bag. Okay, extracellular, intracellular digestion. लाइसोसोम कैसे बनता है? From the Golgi body. वो कहाँ से आया? Golgi body, endoplasmic reticulum. क्या है, कैसा है, वो तुम स्टडी करोगे वो चैप्टर. Sometimes regurgitation or vomiting takes place due to reverse peristalsis. फूड जो है वो यूजुअली पेरिस्टाल्सिस से नीचे आता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बनाया मैंने, दैट इज डाउनवर्ड. अगर वो खाना उल्टा निकल रहा है तो इट इज अपवर्ड, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस. वॉमिटिंग, वी कॉल इट एज वॉमिटिंग. ओके, वॉमिटिंग कब होता है, क्यों होता है? ओके, क्या लिखा है? Sometimes regurgitation or vomiting takes place due to reverse peristalsis. Food from the esophagus enter into the stomach. The gastroesophageal sphincter controls the passage of food into stomach. Now, what is a gastroesophageal sphincter? ये stomach और esophagus के बीच में जो sphincter होता है, ये है esophagus और ये है stomach. इसके बीच में यहाँ पे है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, यहीं पे स्फिंक्टर है जो फूड को इसोफेगस से स्टमक में गार्ड करता है नीचे जाने के. ठीक है, अगर ये उल्टा हो गया तो इट इज वॉमिटिंग. व्हेन द स्टमक इज टू फुल या स्टमक इज नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग, ठीक है, वो केस में ऐसा होता है. It happens. Now digestion in the stomach. Both mechanical and chemical digestion takes place in the stomach. The stomach stores the food for at least 4 to 5 hours. इसका मतलब क्या समझे तुम? अगर हमने कुछ भी खाया है तो एटलीस्ट 4 to 5 hours तक हम लोगों को कुछ और खाना नहीं चाहिए. Got it? अगर तुमने कुछ खाया है तो next 4 to 5 hours तक you should not eat anything. The physical digestion happens by churning of food. Thick muscular wall of the stomach helps in churning process. Churning breaks down the food particles and also helps to mixing of food into gastric juice with food. The mucosa layer of the stomach, that is inner lining, stomach का inner lining, stomach का अंदर का lining जो फूड के कांटेक्ट में रहता है, उधर गैस्ट्रिक ग्लैंड है. क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप के मेजर सेल्स होते हैं. याद रखो, डोंट फॉरगेट, ये इंपॉर्टेंट है. नीड पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज इंपॉर्टेंट. म्यूकस सेल्स, पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स एंड पैराइटल सेल्स. एक म्यूकस सेल्स है, एक पेप्टिक सेल्स है. पेप्टिक सेल्स को चीफ सेल्स भी बोलते हैं और पैराइटल सेल्स जिसको ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं. द म्यूकस सेल सीक्रेट्स म्यूकस. व्हाट इज द म्यूकस? अपने नाक से निकलता है, कुछ निकलता है नाक से. हाँ, स्टिकी सब्सटेंस, मॉइस्चराइजिंग क्रीम. सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट वो स्टिकी सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो नहीं निकलेगा तो हालत खराब हो जाएगा. वो म्यूकस एसिड से बचाता है स्टमक. द पेप्टिक सेल सीक्रेट्स प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन. ये वो एंजाइम है जो आगे जाके पेप्सिन बनाएगा. ओके. द पैराइटल सेल सीक्रेट्स HCl and intrinsic factor, HCl hydrochloric acid, which is essential
फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जो B12 के एब्जॉर्प्शन में एसेंशियल है, हेल्पफुल करता है। अगर ये नहीं आएगा इंट्रिंसिक फैक्टर तो B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी इन इन्फेंट्स। इन्फेंट मतलब बच्चा जो पैदा हुआ है बिलो 1 ईयर, अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर, टेक्स्ट बुक है तो लिख सकते हो। स्टमक सीक्रेट्स अ हार्मोन रेनिन, याद रखो इसका स्पेलिंग याद है, हमने रेनिन पढ़ा है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, हाँ एक्सक्रीशन टॉपिक में रेनिन पढ़ा है ना। ये वो रेनिन नहीं है, ये अलग रेनिन है। वो रेनिन का स्पेलिंग था RENIN, यहाँ पे डबल एन है, ध्यान से देखो, नीट में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जो रेनिन है व्हाट इट डज, ये क्या करता है बता नहीं ना, चलो मैं बताता हूँ। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl इन गैस्ट्रिक जूस। रेनिन कन्वर्ट द मिल्क प्रोटीन कैसिनोजन इनटू कैसीन। मिल्क में प्रोटीन है कैसिनोजन, इसको कैसीन में कन्वर्ट करता है। ये इन्फेंट के माउथ में सलाइवा में होता है, बच्चा जो पैदा करता होता है ना। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl in gastric juice makes the food acidic and stop the action of salivary amylase. It kills the germ, वो सारे germ जो air के contact में था, जो तुम खाए उसको मार देते हैं, that might be present in the food. Pepsinogen get converted into active chemical pepsin because of HCl. तो HCl क्या करता है, alkaline pH of the mouth को वो acidic में convert करता है, neutralize करके, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन the protein get converted into simpler food. तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज में कन्वर्ट करता है। सिंपल वर्ड में ये पूरा केमिकल रिएक्शन अगर देखना है तुमको तो मैं बताता हूँ तुमको, देखो यहाँ पे दिया है पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, ये इनएक्टिव था, एक्टिव में हुआ, pH 1.8 कितना ज्यादा एसिड है, और प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन जो बन गया एसिडिक मीडियम में प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो। तो क्या दिया है, ऑलवेज रिमेंबर food remains for a short time in the mouth but the action of salivary amylase continues for 15 to 30 minutes till the gastric juice mixes with the food in the stomach. Why do you think it stops after gets mixed with gastric juice? It is because of the action of hydrochloric acid. Now it is talking about renin, RENNIN, found in the gastric juice. The renin found in the which part? Gastric juice of infant act as a on casein, a protein of the milk. ठीक है, it brings about curdling of milk. Milk को curd में convert करने में help करता है with the help of calcium ion. The coagulated, that is curdling of milk protein, further digested with the help of pepsin. Renin is absent in adult. हम लोगों में नहीं होता है. At the end of the gastric digestion, food is converted into a semi-fluid acidic mass digested called as chyme. What is a chyme? लिखा है. It is a semi-fluid acidic mass of partially digested food. आगे digestion बाकी है. The chyme from the stomach is pushed into small intestine by pyloric sphincter for further digestion. बताता हूँ कैसा होता है. ये देखो, स्टमक से फूड डाइजेशन के बाद ये देखो यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है. ठीक है, यहाँ से फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. द फर्स्ट पार्ट इज डिओडेनम. इट इज डिओडेनम, फर्स्ट पार्ट.
Now digestion in the stomach, sorry, in the small intestine. In the small intestine, the intestinal juice, bile juice and pancreatic juice mixed with the food. क्या बोल रहे हैं, क्या होता है यहाँ पे? इंटेस्टिनल जूस, जिसका नाम है सकस एंटेरिकस, जो इंटेस्टाइन बना, बाइल जूस जो कौन बनाता है? लीवर, पेनक्रेटिक जूस पेनक्रियाज में पड़ा है, मिक्स हो जाता है विद फूड। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ना, इंटेस्टाइन मूव करता है, वो ऑफ द मस्कुलरिस लीवर, वो प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टिव जूस में काम आता है विद काइम। द बाइल जूस एंड पेनक्रेटिक जूस आर पोर्ड इन द डिओडेनम थ्रू हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट, जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है। बाइल क्या होता है? इट इज अ डार्क ग्रीन कलर्ड फ्लूइड दैट कंटेन्स बाइल पिगमेंट। क्या रहता है उसमें? बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का नाम देखो, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, दो बिल्ली होती है, एक रूबिन और एक वर्डिन। बाइल सॉल्ट में क्या रहता है? सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, ये सॉल्ट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। कोलेस्टेरॉल रहता है, फॉस्फोलिपिड। ये कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा बढ़ जाता है ना, ऑयल, तो क्या होता है मालूम है? स्टोन हो जाता है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, छोटे छोटे या बड़ा स्टोन हो जाता है, क्या बोलता है? गॉल स्टोन। ये डायग्राम देखो, ये जो गॉल ब्लैडर है ना, ये गॉल ब्लैडर, इसमें स्टोन हो जाता है, इस ब्लैडर के अंदर बारीक बारीक स्टोन हो जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ओके, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ठीक है, bile does not contain any digestive enzymes. अच्छा, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स भी रहते हैं। bile does not contains any digestive enzymes. Bile salt neutralizes the acidity of chyme and makes it alkaline. पहला माउथ में क्या था? अल्कलाइन, स्टमक में एसिड हुआ, फिर उसको वापस अल्कलाइन करना है, तो बस वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। It brings about emulsification of fat. मैंने डिस्कस किया था फैट emulsification लास्ट लेक्चर। It activates the lipid digestive enzyme. What enzyme? Lipid digestive enzyme. Lipid मतलब फैट, डाइजेस्टिव मतलब ब्रेक डाउन। वो एंजाइम जो फैट को ब्रेक डाउन करता है, उसको वो क्या करता है? एक्टिवेट करता है। Bile pigments impart color to the fecal matter. तो fecal matter जो पॉपी जो होता है, उसको कलर देता है, वो कलर देता है। Pancreatic juice secreted by the pancreas contains pancreatic amylases. अब pancreatic juice में क्या केमिकल है? Pancreatic amylase होता है, pancreatic lipase होता है, inactive enzyme जैसे कि trypsinogen, ये inactive है, and chymotrypsinogen, ये सब pancreatic juice में होता है। Pancreatic juice also contains nucleases. उसमें क्या रहता है? Nucleases. The enzyme digests the nucleic acid. Nucleic acid मतलब DNA RNA, उसको डाइजेस्ट करता है। Intestinal mucosa, intestine secrete digestive enzyme. Goblet cells, ये cells है, हम लोगों ने स्टडी किया था इन द चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो मैंने सिखाया था एनिमल टिश्यू, उसमें बताया था ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मैंने बताया था गॉबलेट सेल। ओके, म्यूकस प्लस इंटेस्टिनल एंजाइम constitutes the intestinal juice called as succus entericus. I think मैंने कुछ टाइम पहले बताया था succus entericus के बारे में। The intestinal juice contains various substances like dipeptidases, lipases, disaccharidases. Dipeptidase break down करता है डाइपेप्टाइड को,
लाइपेजेस लिपिड्स को, फैट को ब्रेक डाउन करते हैं। बोथ पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल लाइपेजेस इनिशियली कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड। वो क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। एंड डाइग्लिसराइड, फैट को किसने ब्रेक किया, फैटी एसिड एंड डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड आगे कन्वर्ट होता है इनटू मोनोग्लिसराइड बाय रिमूवल ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम ग्लिसरॉल। नाउ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट इन पैनक्रियाटिक जूस प्रोटेक्ट द इंटेस्टिनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एंड प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। सब म्यूकोसा ग्रूनर्स ग्लैंड, म्यूकोसा के नीचे ग्लैंड रहता है ग्रूनर्स ग्लैंड, रिमेंबर, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, रिमेंबर ग्रूनर्स ग्लैंड, एग्जाम में आता है। सब म्यूकोसा ग्रूनर्स ग्लैंड हेल्प इन एक्शन ऑफ ग्लोबुल सेल्स, the most digestion get over in small intestine. Let us study the action of pancreatic and intestinal secretion in sequential manner, मतलब stepwise manner. Think about it. How can I keep my pancreas healthy? Can a person live without pancreas? Question है. How do we feel hungry? Ghrelin is a hormone which is mainly produced by the stomach and small intestine, pancreas by the and brain. It is also known as hunger hormone because it stimulates the appetite, मतलब भूख बढ़ाता है, increases the food intake and promotes the fat storage. The action of pancreatic juice. Pancreatic juice का action ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे in the common step like chemical reaction वाला. Pancreatic amylase, salivary amylase क्या करता था? सलाइवा को डाइजेस्ट करता था ना, ये अपना स्टार्च को। तो pancreatic amylase convert act on glycogen and starch convert into disaccharides. Lipases hydrolyze fat molecule into fatty acids and monoglyceride inactive trypsinogen को present in pancreas convert करता है active trypsin. This conversion is brought about by enterokinase enzyme in small intestine. Trypsin convert proteins as well as proteases and peptones to polypeptide. Also convert chymotrypsinogen into active chymotrypsin, which convert polypeptide to dipeptide. ये सब मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पे. Look at this. न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस ब्रेक करता है न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोसाइड्स में, न्यूक्लियोटिडेज न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियोसिडेज किस पे कन्वर्ट होता है, क्या करता है, न्यूक्लियोसाइड्स को शुगर एंड बेस में कन्वर्ट करता है। तो न्यूक्लियोसाइड किसका बना हुआ है, शुगर एंड बेस का। न्यूक्लियोसाइड किसका बना हुआ है, शुगर एंड बेस का। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, शुगर बेस एंड फॉस्फेट क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स का कौन है, न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो उनका ब्रेकडाउन बताया ना। एक्शन ऑफ इंटेस्टिनल जूस जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, माल्टोज माल्टोज को ब्रेक करता है इनटू ग्लूकोज। क्या बताया मैंने, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट, लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट। ये पढ़ा था डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट, और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टडी किया है अभी तक। Now conversion of, one second, student. Conversion of protein into amino acid, fat to fatty acids and monoglycerides, nucleic acid to sugar and nitrogen base and carbohydrate to monosaccharide marks the end of the digestion of food. यहाँ पे digestion end हो जाता है। Food is now converted into chyle. वहां पे क्या था, chyme था, यहाँ पे क्या है, chyle. Okay, completely digested food.
और इनकम्प्लीट डाइजेशन को हम लोग बोलते थे काइल. काइल इज अल्कलाइन, स्लरी, contains various nutrients ready for absorption. Nutrients रहता है जो absorb हो सकता है. The nutrients are absorbed by the absorbed by the intestine. Undigested food are transported to large intestine. Undigested food किधर जाता है? Large intestine. Remember, the mucosa of large intestine produces mucus, but no enzyme. Large intestine का mucosa जो है, inner lining, वो mucus बनाता है, कोई एंजाइम नहीं बनाता. Some carbohydrates and protein do enter the small intestine and digested by the action of bacteria. क्या बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से डाइजेस्ट होता है. फिर बाद में these are digested by action of bacteria that live in the large intestine. Carbohydrates are fermented by bacteria action and hydrogen, carbon dioxide and methane gases obtained in the colon. इससे मीथेन गैस बनता है. अभी ये जो स्टूल जो पोटी हम लोग करते हैं ना, इससे हम लोग को यू वोंट बिलीव अच्छा मीथेन क्वांटिटी में मिल सकता है, जिससे हम लोगों को फ्यूल की कभी कमी नहीं होगी फ्यूचर में. प्रोटीन डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन ends up into the production of substances like indole, skitol and H2S. These are the reason for the odor of the fecal matter. fecal potty में जो गंदा स्मेल आता है ना, because of these two. The bacteria synthesize several vitamins like vitamin B and vitamin K. vitamin K जो है ना, जो क्लॉटिंग में काम आता है, वो भी यही बैक्टीरिया बना के देता है हम लोग को फ्री में. It is essential that the digestive enzymes and juice are produced in a stepwise, sequential मतलब stepwise manner and at a proper time. These secretions are under neurohormonal control. Neuro मतलब brain, हार्मोन के कंट्रोल में. Sight मतलब देखना, smell and even thought of food triggers saliva. Trigger मतलब stimulate, लाल बनना saliva mouth में, ठीक है. And gastric juice secretion in the stomach. The 10th cranial nerve stimulates the secretion of gastric juice. Cranial nerve, brain से nerve आता है. Cranial nerve 10 जिसका नाम है vagus nerve. Even the hormone gastrin brings about the same effect. You must have experienced hunger pangs and your regular meal time. देखो खाना खाने के टाइम पे बराबर भूख लगता है ना. Can you reason how it happens? Because of the same system. Now, intestinal mucosa produces hormone like secretin. ध्यान रखो, अंडरलाइन करो, नेक्स्ट को कहता हूँ. इंटेस्टाइन का म्यूकोसा बनाता है हार्मोन लाइक secretin, cholecystokinin, gastric inhibitory peptide, ठीक है. नाउ क्या करता है? Inhibit the secretion of gastric juice. It stimulates the secretion of bile from liver and pancreatic juice. Intestinal CCK brings about the stimulation. Similar action induces satiety. Satiety मतलब पेट भर जाता है and fullness or satisfaction. GIP also inhibit the gastric secretion. With this we completed this page. By next lecture I should be able to finish off this chapter.